ਲੈ ਦੋ ਛੱਲਾ ਛੱਲਾ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਛੱਲਾ ਲੈ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਟਕਾਵਾਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜੀ ਆਜਾ ਚੱਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਈਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਖਰਚੇ ਲੈ ਦੇ ਛੱਲਾ ਛੱਲਾ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਛੱਲਾ ਲੈ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਟਕਾਵਾਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜੀ ਲੈ ਦੋ ਛੱਲਾ ਛੱਲਾ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਛੱਲਾ ਲੈ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਟਕਾਵਾਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜੀ ਲੈ ਦੋ ਛੱਲਾ ਛੱਲਾ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਛੱਲਾ ਲੈ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਟਕਾਵਾਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਨੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖਰਦੀ ਤੇਰੀ ਕਿਊਟ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਦੀ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਵਲਾ ਹੀ ਰੰਗ ਵੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪਸੰਦ ਵੇ ਕਿਊਟ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਦੀ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਵਲਾ ਹੀ ਰੰਗ ਵੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਨਾ ਦੂਰ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪਸੰਦ ਵੇ ਅੱਖਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਨੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖਰਦੀ ਤੇਰੀ ਕਿਊਟ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਦੀ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਵਲਾ ਹੀ ਰੰਗ ਵੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਨਾ ਦੂਰ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪਸੰਦ ਵੇ Now let's talk with the doers, the dreamers, believers, achievers, the successful people with their eyes to the sky and their feet on the ground. J-ho, J-ho, J-ho. This is Jay Kumar's show. Namaste, salam, sat sri akal, everyone. Welcome to Jai Ho. I'm your host Jay Kumar, and today we bring you a personality जिन्होंने अपनी धुन, अपने लिरिक्स, अपने गीतों से अपनी जय जयकार हासिल की। पंजाबी म्यूजिक पे तो हम सब डांस करते हैं, बट उसके कैची फ्रेजेस के सिवाय हमें गाना ज्यादा याद नहीं रहता। Now there are many good composers from Punjab who has given a lot of hits, but my guest today, इनकी खासियत है कि he can mix beats, melody, poetry so well that he can bring out a fine gem that rocks at the chartbusters. Ladies and gentlemen, today we present a rising star from the Punjab music industry, super talented and my favorite, Vicky Sandhu. Vicky ji, welcome to Jai Ho. जय भाई, थैंक यू सो मच। और ये जो आपने इंट्रो बनाई है और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा, आपने जो वर्ड्स चुने हैं मेरे लिए, और थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Wonderful. So विकी जी, इससे पहले कि हम अपनी बातों का सिलसिला शुरू करें, लेट्स लुक एट योर शो रील। एक नजर डालते हैं आपकी शो रील पे। Vicky Sandhu, Vicky Sandhu, Vicky Sandhu, yeah. This Punjabi boy was meant to sing. He's the composer and lyricist king with the voice of an angel. He has it all, starting with Zindagi Tere Naam, Diamond to Chala and 1 a.m. All songs to his name. Success during the pandemic is when he shot to fame. Has a master's in music, so listen and give it a whirl. With songs all about love when boy meets girl. He's now on J-Ho, the Jay Kumar show. So we welcome you, it's Vicky Sandhu, one of our favorite singers. Vicky Sandhu, yeah. थैंक यू सो मच फॉर द शो रील। भाई जिन्होंने भी गाया है शो रील में,
थैंक यू सो मच टू एवरी पर्सन, म्यूजिशियंस जिन्होंने गाया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, और आपने एफर्ट्स करे हैं मेरे लिए, और थैंक यू सो मच। चलिए विकी जी शुरुआत करते हैं। सो टू स्टार्ट विद, हमें बताइए पहले अपने बचपन के बारे में, और कब आपने डिसाइड किया कि आप एक गीतकार बनना चाहते हैं, कंपोजर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, और कैसे आपने, कौन सा ट्रिगरिंग पॉइंट था आपका लाइफ में? मैं मैंने स्टडी की है म्यूज़िक में, और स्कूल में जब पढ़ते थे तब भी स्कूल में छोटे-छोटे फंक्शंस होते थे ना, वहाँ पे भी गाते थे, मैं गाता भी था साथ में। और लिरिसिस्ट बनना है उसका अभी नहीं था पता, क्योंकि वो जो मैंने पहला गाना लिखा वो 2013 में लिखा मैंने, पहला गाना। और उसके बाद ऐसे ही, मतलब पहले गाते थे और सीखा भी है मैंने, उसके बाद मैंने मास्टर्स की है म्यूज़िक में एलपीयू से। और ये जो गाना ज़िंदगी तेरे नाल मैंने लिखा है वो 2013 का लिखा हुआ था, और उसके बाद वो हुआ, और उसके बाद सारा कुछ मतलब चेंज हुआ, मेरी लाइफ़ का यू टर्न था वो ज़िंदगी तेरे नाल, जो अभी तक मतलब गाना चल रहा है वो अच्छे से। और ऐसे ही स्टार्ट किया, मतलब बचपन से ही यही चलता आ रहा है, म्यूज़िक, म्यूज़िक, म्यूज़िक यही चलता आ रहा है मेरी लाइफ़ में। मेरे फ़ादर साहब इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे मेरे लिए, और बिग ब्रदर मेरे, और फैमिली सारी सपोर्टिव थी। और ऐसा तो कभी नहीं हुआ, फ़ादर साहब ने बहुत सपोर्ट किया है, जब मतलब उन्हें पता भी नहीं था भी ऐसा हो सकता है, इन फ्यूचर ऐसे भी हो सकता है, अच्छे-अच्छे गाने हो सकते हैं, आ सकते हैं, हिट हो सकते हैं। फिर भी उन्होंने तब भी सपोर्ट किया, इसीलिए अब यहाँ पर हूँ। वाह, वाह। नहीं तो मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि हिंदुस्तान में पहले आप इंजीनियर बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। हाँ, काफ़ी काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ, काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा होता भी है, जिनका मतलब प्रोफ़ेशंस वो नहीं होता, मतलब वो घरवालों के कहने पे अपना प्रोफ़ेशन चूज़ करते हैं ना, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट का काम करता है, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ सपोर्टिव चलते हो, तो फिर मतलब इसीलिए हम यहाँ पर हैं आज। सो विकी जी, आपके गीतों में एक अलग ही मतलब जो भी आजकल पंजाबी म्यूजिक में आ रहे गाने, उसमें अपनी एक अलग पहचान होती है, और अक्सर आपके गानों में एक शिकायत होती है, प्यार भरी शिकायत होती है, अच्छी शिकायतें होती हैं। तो आपका प्रोसेस क्या है जो इस तरह से आप गाने लिखते हो? क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हो? क्या आपका ट्रिगरिंग पॉइंट होता है? क्या आपका इमोशन होता है? थोड़ा उसके बारे में बताएँ। एक्चुअली मुझे लगता है ये ऑब्ज़र्व ही करते हैं हम सभी को, नहीं तो कुछ चीज़ें होती हैं गॉड गिफ्टेड हैं, और जो कंपोज़िशंस होती हैं वो थोड़ी-सी गॉड गिफ्टेड होती हैं। मेरी जो मुझे जो आज तक कॉम्प्लीमेंट्स मिले हुए हैं वो मेरी कंपोज़िशंस पे मिले हैं। भी आपकी कंपोज़िशंस डिफरेंट्स होती हैं, मतलब उसमें डिफरेंस होता है, किसी के साथ मिलती नहीं होती, या कुछ क्लासिकली थोड़ी-सी मतलब अ, टिपिकल भी होती हैं समटाइम्स, जैसे ज़िंदगी तेरे नाल था, वो थोड़ा-सा टिपिकल था ना, बट म्यूज़िक के साथ रिलेटेड होती है, ऐसे नहीं होता, मतलब सीधा-सीधा नहीं होता, थोड़ा-सा मतलब डूंघाई में होता है, जिसे कहते हैं पंजाब डीपली कह सकते हैं ना, थोड़ा-सा डीपली होता है। तो वो गॉड गिफ्टेड भी है, और जो सीखा है शुरू से और मास्टर्स करी है म्यूज़िक में, हर एक चीज़ को ध्यान से, जब कंपोज़िशंस होती है तो ध्यान से हर एक चीज़, क्या वर्ड आ रहा है, क्या कैसे गाना बना हुआ है, उस वर्ड के हिसाब से वो भी थोड़ा-सा करता हूँ मैं अपने हिसाब से। वो मतलब मोस्टली अगर कहूँ तो गॉड गिफ्टेड होती हैं चीज़ें, हम अपने हिसाब से कुछ नहीं करते, ये परमात्मा क्या होता है, सारा कुछ किया धरा जो भी है, मतलब हम आप नहीं कर सकते ये चीज़ें, अगर कुछ जो हिट है हम चीज़ खुद नहीं बनाते, वो नहीं तो ऑडियंस बनाती है, नहीं तो ऊपर वाला बनाता है। आई थिंक सो, मतलब हर एक का अलग-अलग सा वो नज़रिया हो सकता है, बट मुझे ये लगता है। बहुत खूब, बहुत खूब। विकी जी, मैं आपसे ज़रूर और ज़्यादा डिटेल्स में एक्चुअली समझना चाहूँगा कि आपका एज़ एन एग्ज़ाम्पल लाइक क्या प्रोसेस आप फ़ॉलो करते हैं? जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल डायमंड द छल्ला व्हिच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। बट इससे पहले कि हम उसकी तरफ बढ़ें, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि लाइक आपका करियर स्टार्ट हुआ 2016 में, आपने गाना लिखा था 2013 में, लेकिन जो आप लाइमलाइट में आना शुरू हुए, वो 2016 के बाद। और जो एक्चुअली आप
का सबसे बेहतरीन साल रहा, या जो आप बुलंदियों पे पहुंचे, वो साल जो था आपका 2020। और 2020 में पैंडेमिक अपने पीक पे था इंडिया में, और लोगों के बिजनेस बंद हो रहे थे, नुकसान हो रहे थे, फिल्में रिलीज नहीं हो रही थी। तो सब जगह एक तरह से मंदी का दौर था, लेकिन एक शख्सियत जिनका नाम है विक्की संधू, वो एक के बाद एक हिट दे रहे थे इस पैंडेमिक में। तो प्लीज बताइए कि आपका आपका क्या मोटिवेशन था, इन ऑल दैट पैंडेमिक। आप कैसे उसको मैनेज कर रहे थे, और ये जो मैजिक हुआ आपके साथ इस पैंडेमिक में, वो कैसे हुआ? ये जो डायमंड का चल रहा था, ये पहले का बना हुआ था लॉकडाउन से। और मैं हमेशा कहता हूँ अपने इंटरव्यूज में, और मैं थोड़ा-सा खुशकिस्मत हूँ इस बात में, जब सब लोगों का काम नहीं चल रहा था, तो मेरे सबसे ज़्यादा गाने मेरे करियर के 2020 में आए हैं अब तक के, है ना? आगे तो चलो आ ही रहे हैं, बट अब तक के 2020 में मेरे गाने आए हैं, 5-6 गाने रिलीज़ हुए और सभी अच्छे गए, 50 मिलियन प्लस हैं सभी। और ये डायमंड दा चल्ला पहले बनाया हुआ था गाना, और लॉकडाउन के हिसाब से जब रिलीज़ लॉकडाउन में होना था, तो थोड़े से चेंजेस करे थे उसमें। तो मतलब ऐसे ही गए हुए वो, जैसे टाइम जो चल रहा था ना पैंडेमिक में, वो टाइम वैसा चल रहा था, तो उसके हिसाब से वो ज़रूरी था। नहीं तो रिलेट ना करता वो लोगों के साथ, है ना? क्योंकि सारी ऑडियंस वो चीज़ों को वो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही थी, वो सबके साथ हो रहा था वो उस टाइम पे, है ना? वो चीज़ें हो रही थी सबके साथ, मास्क लगाना है, पुलिस वाले जब आते हैं, वो सारी चीज़ें वो वीडियो में भी विजुअली बहुत अच्छा कर दिया, दिखा दिया उन्होंने सारी चीज़ें। बट वो ऐसे ही पहले गाना कुछ और बना था, बट बाद में जब पैंडेमिक चल रहा था और कोविड में, उसके हिसाब से थोड़ा-सा चेंजेस कर दिए थे उसमें। बहुत सुंदर। तो विक्की जी क्या कहते हैं, हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए एक बार डायमंड द छल्ला? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वही लाइन सुना देता हूँ आपको थोड़ी-सी। आजा चल विआह करवाइए, लॉकडाउन विच घट होणे खर्चे, ले दे छल्ला छल्ला डायमंड दा छल्ला, ले दो हां जी, दिल मेरा करदा तेरे इक टकावां, बस मेरा चलदा ना जी। ले दो छल्ला छल्ला डायमंड दा छल्ला, ले दो हाँ जी, दिल मेरा करदा है तेरे इक टकावां, बस मेरा चलदा ना जी। ले दो छल्ला छल्ला डायमंड दा छल्ला, ले दो हाँ जी, दिल मेरा करदा है तेरे इक टकावां, बस मेरा चलदा ना जी। ये बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। सो विकी जी, फॉर श्योर नेहा कक्कर ने फुल जस्टिस किया इस सॉन्ग को, बहुत ही खूबसूरत आया। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि इतना सुंदर गाना, और जो भी आपके दूसरे गीत हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं, तो आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि ये गाना मैं नहीं गाऊंगा, ये गाना ये सिंगर गाएगा? आपकी आवाज खुद की भी बहुत अच्छी है, आप खुद गाते भी हैं, लेकिन इस तरह के ये जो रीसेंट हिट्स आए हैं उनको आपने ज्यादातर नहीं गाया है। तो ये डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं कि ये मैं नहीं गाऊंगा, ये कोई और गाएगा? नहीं, एक्चुअली ये जो चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ हम खुद नहीं वैसे कर सकते, निभा सकते हैं। सबसे बड़ा थैंक्स देसी म्यूज़िक फैक्ट्री को मैं कर रहा हूँ, और अंशुल भाई हैं देसी म्यूज़िक फैक्ट्री के ओनर, उन्होंने मुझे मतलब अपॉर्च्युनिटी दी ऐसे काम करने के लिए, क्योंकि पहला गाना हमारा डेली था, और वो गाना भी मेरा नेहा के साथ आया, पहला गाना नेहा जी के साथ। और मेरा पहला गाना पहले ज़िंदगी तेरे नाल था, उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा गाना है देसी म्यूज़िक फैक्ट्री से, वो नेहा कक्कड़ जी ने गाया, और वो मेरे लिए बड़ी बात थी। और इन सब के पीछे एक जो मतलब जिन्होंने बैकबोन का काम किया है, वो था अंशुल गर्ग, जो देसी म्यूज़िक फैक्ट्री के ओनर है ना। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, पहले ज़िंदगी तेरे नाल के बाद उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने पहचाना भी ये बंदा लिख रहा है अच्छा, और इसके साथ बात करी जाए, और अभी मैनेज भी मुझे वही करते हैं। और उसके बाद जो भी गाने वगैरह आए देसी म्यूज़िक फैक्ट्री के साथ ही आए। मतलब उनकी सपोर्ट के कारण आया ये सारा कुछ हुआ। नेहा ने गाना गाया, और आगे गाने और आ रहे हैं, सी स्क्वायर जी ने गाना गाया, नेहा जी ने गाया, और आगे बड़ी-बड़ी कोलैबोरेशंस आ रही हैं। अभी जो मतलब सरप्राइज़ है सबके लिए, वो सबसे बड़ा थैंक्स अंशुल भाई को है इन सब के बीच में। अंशुल जी, अगर आप सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग सच ए ग्रेट टैलेंट टू द इंडस्ट्री। Driving in my two-seater, ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ two-seater, नेक मेरी खाली दे ले दो जी हार नू, नहीं जाना पैदल ले दो, दूसरी
सीटर कार नू घुम्मन नू करदा ए दिल ले जो किते बाहर नू नहीं जाना पैदल ले दो टू सीटर कार नू Yeah, driving in my two-seater, in my two-seater. Yeah, whipping in my two-seater, in my two-seater. बिल्कुल बिल्कुल, ये टू सीटर कार कनिका जी के साथ हुआ और मुझे नहीं था पता भी इतना अच्छा गाना चलेगा, बट काफ़ी ऑडियंस पसंद कर रही है वो गाना। 15 मिलियन पे है ऑलरेडी और मुझे लगता है अच्छा जाएगा गाना ये। सो विक्की जी, मैंने देखा है कि पंजाब में फिल्मों में या म्यूज़िक में टिपिकली ये ट्रेंड है कि पहले आप एज ए कंपोज़र आते हैं, फिर एज ए सिंगर या एज ए सिंगर आते हैं, तो आप पंजाबी फिल्मों में अल्टीमेटली एज ए हीरो आ जाते हैं। सो आप अपना फ्यूचर कैसे देख रहे हैं कि हम आपको एज ए हीरो देखेंगे पंजाबी फिल्मों का? बिल्कुल, पंजाबी फ़िल्म्स में तो नहीं, बट एज़ ए सिंगर मैं जल्दी अपना डेब्यू करूँगा और मतलब अच्छे तरीके से करेंगे। वो सारा प्लान आउट कर रहे हैं हम अभी। गाने सारे प्लान आउट हुए पड़े हैं। एज़ ए सिंगर कर रहा हूँ जल्दी। कम से कम 3 गाने आएँगे 2021 में, कम से कम। वाह वाह! सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज सॉन्ग्स। इनफैक्ट मुझे एक गाना तो आपका याद है जो आप ही का गाया हुआ है, जो कित्ती मेरे नाल, बहुत ही खूबसूरत गाना है। बिल्कुल मैं सुना देता हूँ जी। हंजुआं ने मैनू अड्ड-अड्ड खा लिया, तेरे नाल मिला के दिल नू तुड़वा लिया, दिल तोड़ गई तू मेरा मन मोणिए, मन मोणिए, मन मोणिए, जो कीती मेरे नाल तेरे नाल होनी है, तू चंगी नहीं हो कीती मेरे नाल सोहणीए, कीता बर्बाद मैनू क्यों सोहणीए, जो कीती मेरे नाल तेरे नाल होनी है, तू चंगी नहीं हो कीती मेरे नाल सोहनी है, जो कीती मेरे नाल तेरे नाल होनी है, मेरे नाल तेरे नाल होनी है, तू चंगी नहीं हो कीती मेरे नाल सोहनी है, तू चंगी नहीं हो कीती मेरे नाल सोहनी है। ये सो विकी जी, आपने अपने आप को पंजाब में, पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश कर लिया है। हर जगह आपके गाने बज रहे हैं अब। सो आपको एज ए नेक्स्ट स्टेप क्या लगता है कि आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड में भी जाएंगे? आप उनके लिए गाने लिख रहे हैं, क्या प्लान है आपका? प्लीज शेयर विद अस। बिल्कुल, बिल्कुल बॉलीवुड में आ रहे हैं गाने, सारा कुछ ही प्लान आउट अभी सभी सरप्राइज़ हैं, मतलब अच्छे-अच्छे सरप्राइज़ आने वाले हैं। जैसे अभी ये कनिका वाला किसी को पता नहीं था, कनिका कपूर के साथ मेरा गाना ये जो हमने प्लान किया था ये 2-3 मंथ तो किया था और कनिका जी को पसंद आया गाना, उन्होंने साथ में ही मतलब हमने काफ़ी गाने बनाए हुए हैं अच्छे और बॉलीवुड में काफ़ी गाने आ रहे हैं, अच्छी-अच्छी कोलैबोरेशंस हैं, जो मैं अभी रिवील नहीं करता चाहता मतलब अभी करूँगा मैं, बट आ रहे हैं, बहुत अच्छे गाने आ रहे हैं बॉलीवुड। सो आई होप जो भी आपका पहला बॉलीवुड या दूसरे गीत आएंगे, वो सबसे पहले आप जय हो पे शेयर करेंगे, एक्सक्लूसिव। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, शिफ्टिंग द गियर्स लिटिल बिट, तो आप जब हम बात करते हैं बॉलीवुड की या पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की, जो मुझे एज एन आउटसाइडर एक बड़ा डिफरेंस नज़र आता है कि बॉलीवुड में अक्सर जो राइटर्स हैं वो हमेशा शिकायत करते आए हैं कि उनको क्रेडिट प्रॉपर नहीं मिलता। इनफैक्ट लास्ट ईयर 2020 में एक बहुत बड़ा मुहिम भी चला था, जिसके अंदर गीतकारों ने अपना एक अलग से गाना बनाया था कि क्रेडिट दे दो यार, राइट? या अगर क्रेडिट मिलते भी हैं तो फिल्म के आखिरी में कहीं पे छोटा सा नाम क्रेडिट्स में कहीं आ जाता है। तो पूरा तरह से इंडस्ट्री कई बार बॉलीवुड में एक्नॉलेज नहीं करती है अच्छे राइटर्स को। इसकी और पंजाब इंडस्ट्री में इसका ऑपोजिट है। जो मैं देखता आया हूँ हमेशा हर पंजाबी गाने में अक्सर आप राइटर का नाम एम्बेडेड होता है, राइट? आपके जितने भी गाने हैं, चाहे वो डायमंड द छल्ला है या 1 AM है या जो भी गाने हैं, उसके अंदर कहीं न कहीं विक्की संधू नाम ही आ जाता है। और ये शुरू से चला आया है, जब से मैं मुझे याद है मैं गुरदास मान के गाने सुनता था या हरभजन मान के, उनके गानों में कहीं न कहीं मान आ जाता है, स्पेशली आखिरी स्टैंजा में। ओ विच गड्डी ते गेड़ियां लाउंदा नाल यारां दे डेली मैनू भी
जद होंदियां वेले विच पुरुष दे गेड़ियां लाउंदा नाल यारां दे डेली मैनू भी किते ले जाया कर जद होवां मैं वेले क्योंकि ना वेट करांदा कदे ना आवे टाइम ते शामी करनू मेरे विक्की संधू तेरे नाल रुस के बैठी तां जी तो ये जो मेन डिफरेंशिएशन है कि पंजाब इंडस्ट्री काफी खुले विचार और खुले दिल की है इन टर्म्स ऑफ गिविंग दी एक्नॉलेजमेंट एंड क्रेडिट टू दी राइटर्स, और बॉलीवुड थोड़ा सा इस मामले में कंजूसी सी कर जाती है। आपको क्या लगता है कि आप इसको कैसे देखते हैं और ये कैसे बैलेंस बिठा सकते हैं बॉलीवुड और पंजाब इंडस्ट्री में? एक्चुअली ऐसे ये तो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होता है। और फर्स्ट मेरा गाना डेली डेली था, उसमें मेरा नाम नहीं था, बट क्रेडिट्स में अच्छे तरीके से अच्छी तरह से मुझे मतलब उन्होंने किया है। जैसे म्यूजिक फैक्ट्री की तरफ से गाना आया था, उसमें रियाज अली का नाम यूज हुआ था, मेरी मेरी रियाज अली का नाम। बट मुझे कोई उसका वो खास फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मतलब जब हर एक बंदा, जब नेहा जी कोई पोस्ट डाल रहे हैं उसमें वो मुझे मेंशन कर रहे हैं, तो लोगों को पता चलता ही है अभी किसने लिखा हुआ है, किसने कंपोज करा हुआ है ना। और बॉलीवुड में गानों में सबका नाम नहीं डलता, जैसे क्रेडिट्स में तो डलता ही है, बट ऐसे नाम नहीं डलता सबका ना। और मेरा डायमंड और डेली डेली में भी नहीं था मेरा नाम, और अभी 1 AM है, 1 AM में था। एक और गाना अभी रिलीज हुआ है, उसमें भी मेरा नाम नहीं है। रिंगटोन नहीं, हाँ, ट्विटर में भी नहीं है। अभी रिंगटोन जो रिलीज हुआ है ना अरूब खान का, उसमें भी मेरा नाम नहीं है। बट वो हमारी आपस में होती है। अभी हम, अगर मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, तो फिर और किसी को तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी आपसी में इंटीमेसी है वो। अब हम अपने हिसाब से देख लेते हैं। भी भाई मुझे कहते हैं कि ऐसे कर ले, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनके करे पर तो मैं यहाँ पर आया हूँ ना। देसी म्यूजिक फैक्ट्री ने मुझे लॉन्च किया है, तो मैं यहाँ पर हूँ, है ना। तो मैं जो, चलो पहले जिंदगी में तेरे नाल गाना बिग हिट था, वो 150 मिलियन है अभी, बट फिर भी उसके बाद जो मुझे चांस दिया है, जो मुझे ब्रेक दिया है, वो देसी म्यूजिक फैक्ट्री ने दिया है। और हम अपने हिसाब से, जैसे मुझे अच्छा लगता है, जैसे उन्हें अच्छा लगता है, आपस में डिस्कस करके वो चीज़ कर लेते हैं। और नाम अगर गाने में नहीं है, तो लोग तो, जिन्होंने इंक्वायरी लेनी है, जो इंक्वायरी वाले लोग हैं, वो तो मतलब लिरिसिस्ट को ही करेंगे ना। वो तो सबको पता ही है कि किसने लिखा हुआ है गाना, ये पता लग ही जाता है। अभी 2 सीटर में नहीं डाला मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था भाई पैन इंडिया का है गाना, और पैन इंडिया में चलेगा, तो कल में मूवी में गाना आता है, तो मूवी में हम नहीं नाम डाल सकते है ना। अभी आपने नाम लिया सॉन्ग का, रिंगटोन सॉन्ग का, विच इज माय फेवरेट सॉन्ग, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मुझे याद है इस रिंगटोन गाने के एक्चुअली 2 वर्जन है। एक तो अरूब खान जी के साथ है आपका, और एक मेल वर्जन है प्रीतिंदर है। तो जस्ट क्यूरियस टू नो, ये 2 वर्जन किस लिए बने इस गाने के? 2 वर्जन इसीलिए बने क्योंकि ये गाना लोगों ने पसंद बहुत किया था, और ये जो था वो लड़की की ओर से था ना गाना। और जो फर्स्ट गाना था वो प्रीतिंदर भाई ने गाया था, हमारे भाई प्रीतिंदर पंजाब से बहुत अच्छा गाते हैं, उन्होंने गाया था। और ये बाद में भाई ने मुझे बताया था मुझे, भाई ने, अंशुल भाई ने मुझे बताया था भी ये हम फीमेल वर्जन बना रहे हैं। और फिर मैंने सुना तो अच्छा लगा, तो फिर वो गाना चल भी गया, वो भी अच्छा चल गया, लोगों ने पसंद किया, वो भी ऑडियंस। क्योंकि अगर चीज़ बार-बार भी आ जाए, अगर अच्छी क्रिएटिविटी हो उसमें, तो मुझे लगता है चीज़ चल जाती है। ये जो जैसे ये वाले जो गाने रिंगटोन, डायमंड द चल्ला, हमारे यहाँ तो ऐसे चलते हैं जैसे कई बार जैसे आरती है, हर रोज शाम को चल जाएंगे ना। तो या वी एंजॉय इट सो मच। रुसिया होया है वे तू की सजना, कल दा लगे ना मेरा जी सजना, कल दा लगे ना मेरा जी सजना, कल दा लगे ना मेरा जी सजना। रुसिया होया है वे तू की सजना, कल दा लगे ना मेरा जी सजना। देवे ना जवाब वे तू मेरी कॉल दा, मैं रोवां तेनू दिसदा ही नहीं सजना। सच सच दस वे कर हुण बस वे, मेरे नाल लड़ लड़ थकदा ही नहीं। मैं तेनू वार वार कर दियां फोन, वजे रिंगटोन तू फोन मेरा चकदा ही नहीं। वार वार कर दियां फोन, वजे रिंगटोन तू फोन मेरा चकदा ही नहीं।
लोग पसंद कर रहे हैं। यहाँ पंजाब में भी मुझे मतलब डायमंड का छल्ला के बाद मुझे बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आई हैं। मुझे मतलब अप्रोच किया है काफ़ी लोगों ने, नए लोगों ने अप्रोच किया है, और ये अच्छी बात है मेरे लिए। और ऑडियंस पसंद कर रही है, ये उससे भी अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो ऑडियंस के लिए करते हैं। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो हम और ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं ना नेक्स्ट गानों में। वही चीज़ होती है, वही मैं कर रहा हूँ। विकी जी, आपने नए नए सिंगर्स की बात की, तो विच रिमाइंड्स मी, एक्चुअली मैंने कुछ टाइम पहले सुना था कि पंजाब में नए नए लड़के वो अपनी ज़मीनें ज़ायदाद बेच रहे हैं एक एल्बम निकालने के लिए। तो दे आर पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ एंड मनी, राइट, कि एल्बम निकालें। और हर कोई सिंगर बनना चाहता है, बट हर एक कोई इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। तो ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, नए लोग भी आ रहे हैं, पुराने भी है एस्टेब्लिश बैठे हुए हैं, तो उसमें अपनी जगह बना के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही कम लोग उस तक बना पाते हैं उस चीज को। अब इन सब के बावजूद इस इतने कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में एक अलग तरह का फिर कंपटीशन ये भी है कि आपने गाना लिखा, बनाया, चलाया, उस पे कितने व्यूज आए, ये जो नंबर गेम है व्यूज की, ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, नंबर गेम सिर्फ पैसे या डॉलर की नहीं है। ये गेम चल पड़ी है कि कितने लोगों ने देखा, कैसा चल रहा है, और बहुत ही कितने 100 मिलियन व्यूज आए, ये सब जो चलता है। तो ये कैसे इम्पैक्ट करता है आपकी राइटिंग पे? जब आप सोच रहे हो, तो जब आप लिखते हो, तो आप सोचते हो इस तरह से कि अरे इतने तो आना ही चाहिए? अम, आपकी राइटिंग, आपकी सिंगिंग, आपकी कॉम्पोजिशंस, उसका उस पर क्या इम्पैक्ट है इस पूरे नंबर गेम का? एक्चुअली मुझे लगता है इसमें नंबर ऑफ व्यूज मैटर नहीं करते। एक और चीज है, अगर कंटेंट अच्छा है तो नंबर ऑफ व्यूज खुद ब खुद बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज आजकल के टाइम में, आजकल की इंडस्ट्री के टाइम में, मतलब मैं गाने सुनता हूँ, सबसे बड़ी चीज है कंटेंट। अच्छा कंटेंट, जो कंटेंट डिजर्व करता है ना, वो चल ही जाता है गाना, मतलब वो चलता ही है, वो चीज चल जाती है। और जो नहीं डिजर्व करता उस पे चाहे आपने 100 मिलियन कराया हो, क्योंकि सभी लोग करवाते भी हैं, कोई नहीं कुछ नहीं भी करवाते हैं ना, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेबल का अपना अपना वो है, स्ट्रेटेजी है ना। और बट जो गाना 10 मिलियन होकर भी सब लोगों ने पसंद किया है, सब लोगों ने सुना है, वो गाना 100 मिलियन के बराबर ही है। मुझे मेरे ख्याल से ऐसे है, मतलब ये कोई इतना ज्यादा वो नहीं है। अगर कोई गाना, क्योंकि ऑडियंस का ये जो व्यूज वगैरह का भी होता है, वो लोगों को पता नहीं है। जो इंडस्ट्री में है उन्हें तो पता है, फेक व्यूज का कहते हैं, बट फेक व्यूज नहीं होते। वो भी मतलब उसका मतलब ये होता है कि हमारा गाना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और उसके बाद लोगों पे डिपेंड होता है, भी लोग वो क्लिक करते हैं, सुनते हैं, फिर उसका रिव्यू देते हैं। ये चीज होती है। और उसका थोड़ा सा अलग तरीके से बना हुआ है भी, शायद ये फेक व्यूज होते हैं या कुछ होता है ना, ये थोड़ा सा, क्योंकि ऑडियंस जो इंडस्ट्री है उन्हें तो पता है सारा कुछ, जो आम आम ऑडियंस है उन्हें नहीं पता ये चीज का। और ये भी चलो आपके शो में थोड़ा सा क्लियर हो गया, मतलब ये फेक नहीं होते। ये जो भी मतलब जितना ज्यादा पैसा लगाता है, क्योंकि उसका पैसा लगाने का माध्यम क्या होता है, उसका मतलब यही है हमारा गाना सब ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे, जिससे लोग हमें अपने गाने का, जो हमारा गाना है उसका रिव्यू दे सके। क्योंकि नहीं तो पुराने समय में ऐसा होता था, हमारा गाना पंजाब का पंजाब में ही रह जाता था, वो पंजाब के बाहर नहीं था निकलता। और अभी थोड़ा सा अगर मिला है माध्यम हमें यूट्यूब का और गूगल का जो भी है, तो फिर अच्छी बात है अगर गाने बड़े होते हैं तो। और उस दिन मेरी वीरेंद्र, आपके ब्रदर से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि आपके गाने, ऑल टुगेदर दे क्रॉस्ड मोर देन 500 मिलियन व्यूज। सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। दिस इज रियली बिग थिंग फॉर मी। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस दिन मुझे भाई ने बताया ये। और अभी तो 500 मिलियन प्लस हो गए हैं वो, थोड़े दिन पहले हुआ था, और अभी ज्यादा हो गए हैं वो, फाइव अभी मेरे ख्याल से 510 हो गए। बट ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मेरे गाने लोग पसंद कर रहे हैं, ऑडियंस पसंद कर रही है। और थैंक यू टू एवरीवन, क्योंकि जिंदगी तेरे नाल से स्टार्ट हुआ है, वो 150 मिलियन पे है और अभी तक वो बढ़ रहा है गाना, और लोग अभी तक भी उस पे वीडियोस डालते हैं। वो चीज़ मुझे देख के मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा जनरे पहले वही था। मैं उस जनरे के गाने लिखता था, उस जनरे में गाता था, वो चीज़ मुझे पसंद थी।
और उसके बाद जैसे जैसे, क्योंकि थोड़ा सा कमर्शियल भी बहुत ज़रूरी है, हमारी इंडस्ट्री में कमर्शियल होना भी बहुत ज़रूरी है, और वो थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ, अगर मुझसे होता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने हिसाब से कोई हर एक गाने में कुछ नया ज़रूर हो, जो पहले गानों में, मेरे गानों में पहले कोई चीज़ मैंने कही ना हो। वो इसलिए अभी गाना मेरा नया गोली मार दे गाना था, वो गोली मार दे गाना था, और उसका मतलब वो कोई सोच नहीं सकता वो चीज़ ऐसी थी, है ना? "जे साडे वाल तकना नहीं, चन्ना वे साडे गोली मार दे।" मतलब वो लोगों ने बहुत पसंद किया चीज़, वो अच्छी लगी लोगों को। बट वो थोड़ा-सा, मुझे लगता है ये थोड़ा-सा डिफरेंट था। काइंड ऑफ मतलब जो गाने आते हैं उनसे थोड़ा-सा कहने का तरीका कह लो। वो जो चीज़ से मैंने वो ट्राई किया करने के लिए, कहने के लिए, वो लोगों को अच्छा लगा। जे साडे वल तकना नहीं, चन्ना वे साडे गोली मार दे। करदा रहना इग्नोर वे, तेरे मूरे चलदा नी जोर वे, सहेलियां तो रख दी लुका के तेनू मैं, मेरे बिना तके ना कोई होर वे, हाय करदा रहना इग्नोर वे, तेरे मूरे चलदा नी जोर वे, सहेलियां तो रख दी लुका के तेनू मैं, मेरे बिना तकी ना कोई होर वे, कोलों दी मुख फेर लंघदा, ए हुंदे नी असूल प्यार दे, जे साडे वल तकना नहीं, चन्ना वे साडे गोली मार दे, जे साडे वल तकना नहीं, चन्ना वे साडे गोली मार दे। वो भी ऑडियंस ने पसंद किया, और इसमें सबसे बड़ी बात, आशीष कौर जी ने इतना अच्छा गाया है ये गाना, और मैंने स्पेशली उन्हें मैसेज करा था, और मैंने कहा भी नो वन कैन संग दिस सॉन्ग लाइक यू हैव संग, है ना? मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना, उन्होंने जैसे गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। विकी जी, थोड़ा सा बैक ट्रैक लेते हैं। अभी आपने बताया कि आप चंडीगढ़ में बेस्ड हैं, कनिका जी चंडीगढ़ आए, तो थोड़ा बताइए हमें, आपका एक्चुअली होम टाउन कौन सा है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई? हाँ, मेरा होम टाउन है नकोदर पंजाब, पिंड शंकर, विलेज शंकर में मैं रहता हूँ, और होम टाउन में वहाँ पर ही मैं बॉर्न हूँ वहाँ का ही। और ये है ये नकोदर नकोदर बाबा मुराद शाह की जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में, और नकोदर के अंदर हमारा गाँव है जिसका नाम है शंकर, और वहाँ के सिंगर हैं पाजी केएस मक्खन बहुत मतलब बाहर पंजाबी ऑडियंस को सबको पता होगा, और उस गाँव का मैं रहने वाला हूँ, और वहाँ से मैं बेस्ड हूँ, वहाँ से मैंने अपनी स्टडी की है, स्टार्ट करी है, और उसके बाद मैंने जलंधर डीएवी से मैंने बीए करी है, और एलपीयू से मैंने मास्टर्स ऑफ म्यूजिक करी है, और उसके बाद फिर ये गाने। ये वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी ये जो आपने बताया कि आपने डिसाइड किया कि मास्टर्स जो है वो म्यूजिक में करनी है, आई मीन मैंने ये सिर्फ ज़्यादा अभी रिसेंटली ही सुनना शुरू किया है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है म्यूजिक में वो काफ़ी परस्यू कर रहे हैं लोग। पहले आई थिंक इतना ट्रेंड नहीं था। तो आई मीन आई थिंक मैंने सबसे पहले सुना था सतिंदर सरताज जी का, जिन्होंने पीएचडी की है म्यूजिक में। तो ये आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था इसमें कि मेरा बैचलर हो गया, मुझे म्यूजिक में ही एमए करना है, तो ये कैसे आपने डिसाइड किया? एक्चुअली ये हमारी लाइन में जब मैंने बीए करी थी, और तभी इतना ज़्यादा पता नहीं था कि क्या स्कोप क्या है, करना क्या चाहिए। तभी तो वैसे ही मतलब म्यूज़िक के साथ प्रेम था, लव था थोड़ा-सा, तो इसीलिए उस लाइन में पड़ गए थे। बट जब मास्टर्स करी है उसके बाद फिर मतलब पता लगता है, क्योंकि बेसिक तो मैंने पहले करा हुआ था। बेसिक्स तो पता थे, जो म्यूज़िक थे थोड़े-थोड़े बेसिक तो वो पहले से पता थे, और उसके बाद ये है जो मास्टर्स करी है उसमें अ, हम कह सकते हैं इम्प्रोविज़न बहुत ज़्यादा हुआ। जो जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, वो मास्टर्स का मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में वो चेंजेस हुए। जो मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें साथ दिया उसमें, और किसी के साथ कैसे बात करनी है, कैसे बैठना है, कैसे सीखना है, कैसे गाना है, वो चीज़ें मतलब वो अच्छे तरीके से वहाँ से पता लगी मुझे मास्टर्स में। क्योंकि पहले कुछ पता नहीं था कि ये लाइन का स्कोप कहाँ तक जाएगा,
बट उसके बाद जो अभी कंपोजिशंस बनती हैं वो क्योंकि हमने वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, वो टेक्निक्स जो सिंगिंग की टेक्निक्स हैं वो थोड़ा-सा पढ़ा हुआ है उसका, इसीलिए वो चीज़ें गानों में अगर किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, कहते हैं गूज़बम्प्स हो गए, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि थोड़ा-सा हम सोचते हैं उस चीज़ पे। ज़िंदगी तेरे नाल जो भी लोगों ने सुना है, अभी ज़िंदगी हसीन गाना आया था, वो जिन लोगों ने भी ध्यान से देखा है, वो मुझे सबका मैसेज आता है, भाई जब भी सुनते हैं ना, नहीं तो रो पड़ते हैं और नहीं तो गूज़बम्प्स होते हैं। मतलब ये चीज़ बहुत बड़ी होती है, अगर ये चीज़ आप किसी के साथ कर देते हो, अगर आपका गाना लोगों को इतना ज़्यादा अपनी ओर खींचता है, तो इसका मतलब यही है भी आप कुछ अच्छा कर रहे हो। रिज़ल्ट क्योंकि ऑडियंस ही है, रिज़ल्ट तो ऑडियंस ही देती है ना आपकी चीज़ का। हमने तो गाना कर देना है, अच्छा है, नहीं है, अच्छा है, वो ऑडियंस ने बताना है। और व्यूज़ अगर गाना अच्छा है तो ऑटोमैटिकली व्यूज़ बढ़ते हैं। अभी 35 मिलियन 2 मिलियन है मेरे ख़्याल से, 32 मिलियन है ज़िंदगी हसीन का और वो बढ़ रहा है दिन-ब-दिन। और माय फ़ेवरेट आर्टिस्ट पैप धारिया, उनके साथ अच्छे-अच्छे गाने आ रहे हैं अभी, क्योंकि मेरा स्टार्ट खान साहब और पैप धारिया के साथ हुआ था। खान साहब के साथ भी मेरे गाने बने पड़े हुए हैं, वो भी आ जाएँगे जल्दी-जल्दी और पैप के साथ काफ़ी गाने आ रहे हैं। वो ही इज़ वेरी सपोर्टिव टू मी, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करा है। जब ज़िंदगी तेरे नाल हमने किया है, उसके बाद हमारी बात हुई तो मैंने कहा भाई भी आई रियली लव योर वर्क एंड आई वांट टू वर्क विद यू। भाई ने कहा गाना बना पड़ा है कोई? मेरे मुझसे बात करी, मैं कहा हाँ जी, गाने तो आपको पता ही है, गाने तो पड़े हैं बने। कहते भेजो कोई अगर अच्छा है कोई। तो मैंने 2-3 गाने भेजे, जो कीती मेरे नाल भाई को अच्छा लगा, कहते करते हैं। और ही इज़ वेरी सपोर्टिव, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, बाद में वीडियो वगैरह शूट किया हमने यहाँ पे इंडिया में और भाई ने अपना पार्ट वहाँ पे शूट किया ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में है वो। उन्होंने वहाँ से शूट करके भेजा और गाना वो भी अ उसका इतने मिलियन नहीं हुए इस गाने के, क्योंकि उस टाइम पे मतलब मुझे उन चीज़ों का पता नहीं था, वो जो चीज़ें अभी होती हैं, प्रमोशंस होती हैं, व्यूज़ होते हैं, जो तब उस टाइम में मुझे पता नहीं था। बट वो जितने लोगों तक वो गाना पहुँचा है, सभी ने कहा है कि गाना अच्छा है। और ये जो पंजाबी के एक और बहुत फेमस सिंगर हैं खान साहब, वो भी आपसे काफी जुड़े रहे हैं, राइट? और आपके साथ कॉलेज में भी थे, आई थिंक। हाँ जी, हाँ जी, जी। खान साहब और मैं हमने बैचलर इकट्ठों ने करी है डीएवी से। म्यूज़िक में हमने करी थी और फर्स्ट ईयर में खान साहब हमारे साथ थे, उसके बाद खान साहब ने छोड़ दिया था और उसके बाद खान साहब का गाना आया फिर गैरी संधू भाई के साथ और फिर उसके बाद खान साहब ने वहाँ पे कंटिन्यू करा और बाद में फिर मैंने वहाँ से करके बाद में मैंने एमए करी म्यूज़िक में एलपी से। फिर ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलता रहा और वो उन सालों के बीच में जैसे जब मैंने बैचलर करा था मैं, तब खान साहब गैरी संधू के पास गए और तब रिमझिम गाना आया था। रिमझिम के 2-3 साल बाद हम मिले थे और भाई घर आए थे मेरे पास और मैंने कहा यार एक गाना बनाया हुआ है। मुझे नहीं था पता अभी वो गाना अच्छा है या नहीं अच्छा है, क्योंकि हमें नहीं पता होता ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरा जो भी मैं कर रहा हूँ उसका सबसे बड़ा श्रेय गॉड को है। क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता जो लाइफ़ में मैंने अभी तक करा है, क्योंकि सारा कुछ मुझे लगता है अभी सीक्वेंस बना हुआ है। मैंने गाना सुनाया भाई को और भाई ने गाकर वहाँ से ही मुझे कहा रिकॉर्ड कर दो, मैंने रिकॉर्ड किया और वो पैप को भेजा हमने रिकॉर्ड करके, तभी पैप कहता है यार गाना बहुत अच्छा है, ये करेंगे। और मुझे नहीं था पता ये गाना अच्छा है, जब गाना ये आया तभी भी मुझे कुछ नहीं पता लगा, जब तक 10-20 मिलियन तक मुझे कुछ नहीं पता था कि ये गाना अच्छा है और जब उसके बाद गाना लोगों को तक पहुँचा अच्छे तरीके से, तो सबका मुझे मैसेज आया। इतनी ज़्यादा इंक्वायरी मैंने सोचा नहीं था ज़िंदगी तेरे नाल के बाद मुझे आई, कि भाई ये गाना आपने बहुत अच्छा लिखा और अभी तक जो भी कोई भी मुझे अगर कोई म्यूज़िक में अच्छा पढ़ा-लिखा और म्यूज़िक को जानने वाला अगर कोई मुझसे गाना माँगता है ना, वो यही कहता है यार भाई कंपोज़िशन ज़िंदगी तेरे नाल जैसी कुछ ऐसा चाहिए। वो चीज़ें मतलब अभी तक वो गाना बढ़ रहा है, 150 मिलियन हो गया है अभी, मतलब धीरे-धीरे बढ़ रहा है वो गाना। और इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें सुनकर और हमने इकट्ठों से शुरू किया है और आगे गाने बने पड़े हुए हैं हमारे। खान साहब, पैब और मी, हमने गाने बनाए हुए हैं, काफ़ी गाने बनाए हुए हैं और भाई के आ रहे हैं जल्दी बैक टू बैक करेंगे। तो विकी जी, आजकल स्पेशली आज के दौर में
एक बड़ा अजीब तरह का प्रेशर रहता है कि स्पेशली जो आप म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं, आप अच्छा गीत लिखते हैं, आप अच्छा म्यूजिक देते हैं, अच्छी कंपोजिशन ओवरऑल बनती है, अच्छे से गाते हैं, फिर उसके बाद आपको स्क्रीन पे भी आना है सामने, तो आपको अच्छा दिखना भी ज़रूरी है। और अच्छा दिखना, सिर्फ अच्छा दिखना बालों और अच्छे कपड़ों तक नहीं है। आई मीन यू रियली नीड टू लुक फिज़िकली फिट। आपको कई बार अपनी बॉडी भी दिखानी पड़ती है। तो ये जो ओवरऑल प्रेशर है, इसको कैसे मेंटेन करते हैं? अभी भी आप शायद ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, तो होटल में हैं। अपनी फिजिकल मेंटेनेंस कैसे करते हैं? जिम जाते हैं, योगा करते हैं? प्लीज शेयर विद अस। आज के 2 साल पहले तो मैं कुछ नहीं करता था, जिमिंग वगैरह कुछ नहीं करता था। बाद में मैंने अ, सोचा अपने हिसाब से भी मेरी बॉडी और सेहत कैसे है, ठीक है या नहीं है। मैं बीमार थोड़ा-सा होने लगा था और उसके बाद जब मैंने सारा चेकअप वगैरह कराया तो फिर मुझे चेकअप वगैरह कराया जब, तो फिर मुझे लगा नहीं यार, जिम इज़ मस्ट। इस लाइफ में जिम इज़ मस्ट, क्योंकि हमारा काम होता है अपना सिटिंग सिटिंग बहुत करते हैं। 6, 7, 8 घंटे म्यूज़िक अगर बना रहे हैं, अगर गाना बना रहे हैं तो टाइम लगता है उसमें। बट उसमें ज़रूरी वो है, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और रनिंग वगैरह, जिम में मैं रनिंग वगैरह करता हूँ और वर्जिश वगैरह करता हूँ अच्छे से। अभी स्टार्ट करा है, अभी लगेंगे अभी 6-7 महीने। तो इसका मतलब हम आपको जल्द ही एक नए अवतार में देखने वाले हैं, फुल बॉडी, राइट, एब्स, मसल्स एंड ऑल। अगर गाने करने हैं तो फिर ये तो करना पड़ेगा ना। ये ज़रूरी, क्योंकि इससे आप खुद अच्छा लगता है। आप अच्छे दिखते हो तो फिर वो अच्छी बात ही है। थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस अच्छा आता है और किसी के साथ बैठने-उठने का अच्छा लगता है। इसीलिए थोड़ा मैंने स्टार्ट किया है अभी भी, चलो करते हैं। अच्छा भी लगता है जिम करके, मुझे अच्छा भी लगता है। जब मैं रनिंग करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखते हैं अपना? जब ज़्यादा बीमार हो जाऊँ तभी रखता हूँ, वैसे तो नहीं। तो लाइक आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड अगर हेल्थीएस्ट वे में देखूँ तो वो मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है, डोसा, इडली वगैरह। और अगर वैसे चाइनीज़ वगैरह में देखूँ तो सारा कुछ ही खा लेते हैं। सब कुछ ही खाता हूँ मैं, सब कुछ, एवरीथिंग, मटन को छोड़ के। तो अगर आप बॉस्टन आए तो आपको किस तरह का हुँ, खाना खिलाएं? साउथ इंडियन, चाइनीज? नहीं, नहीं, साउथ इंडियन तो नहीं खाएँगे फिर, बॉस्टन में आके साउथ इंडियन नहीं खाएँगे, वहाँ पर तो नॉन वेजिटेरियन ही चलाएँगे। या हुँ, यहाँ पर वैसे जो फेमस है ज्यादा, वो है लॉबस्टर्स और कुछ सी फूड। मैं वैसे वेजिटेरियन हूँ, पर दिस इज व्हाट मैं सुनता रहता हूँ कि लोग काफी पसंद करते हैं। सी फूड मैंने ट्राई नहीं किया अभी, कभी भी। गोवा में गए हैं, मतलब मैंने ट्राई नहीं किया। मुझे लगता है मैं करूँगा भी नहीं सी फूड ट्राई, बट चिकन वगैरह चलता है, चिकन, फिश वगैरह चलता है थोड़ा। मटन भी नहीं मैं खाता। Want doctors who are kind, warm and gentle. Time to visit Haverhill Prime Dental. To Haverhill Prime Dental. Haverhill Prime Dental. दिस रिमाइंड्स मी कि एक हुँ, स्टैनफोर्ड हुँ। यूनिवर्सिटी की आई थिंक एक हुँ, हुँ। रिसर्च है, मुझे ये याद नहीं कि दिस इज फॉर सी फूड और सुशी, बट समथिंग लाइक दैट, विच सेज कि अगर आपने 35 साल तक, अपनी उम्र 35 साल तक सी फूड या सुशी आई थिंक नहीं ट्राई किया है, आपने नहीं खाया है, तो देर इज ए 95% चांसेस दैट यू नेवर विल। इट्स इन द सेम वे, अगर आपने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूजिक नहीं सुना है 35 साल तक, तो 95% चांसेस है कि आप उस तरह का म्यूजिक कभी पसंद नहीं करेंगे। ओके। मेरे पास मेरे पास अभी पड़े हैं 7-8 साल फिर। नहीं, ट्राई करके देखेंगे एक बार, ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर बाद में अच्छा नहीं लगेगा तो फिर छोड़ देंगे, कोई इतनी बात नहीं है। क्योंकि हर एक चीज़ ज़िंदगी का हर तरह का मज़ा लेना चाहिए।
ये मतलब ज़रूरी है, हर तरह की चीज़, हर तरह का घूमने-फिरने का और हर तरह का वाक़या देखना चाहिए ज़िंदगी का, क्योंकि हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है ना? ये मुझे लगता है एग्री होंगे आप और सभी ऑडियंस भी एग्री होगी, क्योंकि एक तो और चीज़ है भी, कम्फ़र्ट ज़ोन में कभी भी अ, कम्फ़र्ट ज़ोन में कभी भी तरक्की नहीं मिलती। कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकल के कुछ ना कुछ मिल सकता है। कम्फ़र्ट ज़ोन के अंदर रहकर अगर आप ट्राई करते हो ना, इसके बीच में रहकर मैं ये ट्राई करके देखता हूँ, तो फिर वो उसमें आप वो नहीं कर सकते कभी भी। ये मैंने मतलब अपनी लाइफ़ में से सीखा है। कोई भी चीज़, कोई भी गाना आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में रहकर लिखोगे तो किसी और हिसाब का होगा, अगर कम्फ़र्ट ज़ोन के बाहर निकल के लिखोगे, तो वो गाना बड़ा हो जाएगा। यही चीज़ें होती हैं, मतलब अगर किसी चीज़ को बड़ा बनाना है, अगर क्योंकि जब हम गाने बनाए थे तो यही चीज़ें सोचते हैं, ये ऑलरेडी चीज़ आई तो नहीं है, ये चीज़ ऑलरेडी किसी ने यूज़ तो नहीं करी। अगर हमने करना है तो अगर मेरा नाम जिस चीज़ में जाना है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसमें कम से कम कुछ ना एक एक गाने में कम से कम एक चीज़ तो ऐसी हो जो इससे बाकी गानों से डिफरेंशिएट करे, है ना? ये चीज़ इसमें नहीं है, ये गाना नया है। क्योंकि आज के टाइम में कंटेंट सबसे बड़ी चीज़ है। सबके पास नहीं है और जिनके पास है, वो इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं। यही चीज़ है। बहुत सुंदर बात, वेरी इंस्पायरिंग एक्चुअली। या और काफ़ी गहरी बात कही है आपने, और उससे मुझे एक क्वेश्चन एक्चुअली और ट्रिगर कर रहा है। आपके गीत भी काफ़ी डीप होते हैं और आपने ऑलरेडी फिज़िकल फ़िटनेस के बारे में बताया। तो ये बताइए कि आप अपनी स्पिरिचुअल फ़िटनेस कैसे मेंटेन करते हैं? एक्चुअली स्पिरिचुअल वो जो आपका माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। ये गाने अगर आपने गाने बनाने हैं, अपने म्यूज़िक बनाना है, तो माइंडसेट सबसे ज़रूरी है और उसे सेट करता है मेडिटेशन, वो मैं ज़रूर करता हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे हर रोज़ कम से कम मुझे हर रोज़ आधा घंटा तो मिले ही है ना, कम से कम। ट्राई करता हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो तभी भी मेडिटेशन का हमारा स्पेशली वो होता था, और अभी भी, क्योंकि उसके साथ ही थोड़ा-सा एक तो अ, हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम कुछ कर रहे हैं अपने लिए। एक माइंडसेट जो काम कर रहे हैं उसमें आपके दिमाग पर कोई चीज़ हावी नहीं होनी चाहिए, और अगर आपने अच्छा काम करना है, क्योंकि फिर गाने अगर दिमाग पे टेंशन होगी तो फिर गाने कैसे बनेंगे? और अभी तो हम गाने रोने वाले नहीं बना रहे हैं, अभी तो रोमांटिक बना रहे हैं, वो तो वैसे ही नहीं बनेंगे। तो इसीलिए मैं मेडिटेशन वगैरह करता हूँ, और मैं ट्राई करता हूँ जब हम फ्री होते हैं तो हम बिना बताए किसी को दूर चले जाते हैं माउंटेन्स में, और वहाँ फिर 3-4 दिन बैठ के आराम से घूमते-फिरते हैं, फ़ोन वगैरह बंद होते हैं, तो ट्राई करते हैं इतना। तो विक्की जी, एक जगह मेरे कोलीग बता रहे थे कि आप शायद काफ़ी शिव कुमार बटालवी को पढ़ते हैं। तो ये कहाँ तक सही है कि आप उनको पसंद करते हैं, और आपके वैसे फ़ेवरेट पोएट कौन-से हैं? नहीं, ये बात सही नहीं है। मैं शिव कुमार बटालवी जी को मैंने पढ़ा है, बट मेरे फ़ेवरेट पोएट गुलज़ार जी हैं। और मैं गुलज़ार जी को बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, और मैं पंजाब में सुरजीत पात्र साहब, उनको मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। श्री राम हर्ष जी, वो कॉलेज टाइम मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है उन्हें, और शिव कुमार बटालवी जी को सभी पढ़ते हैं, सभी पंजाब के तो सभी पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा हुआ है। और फ़ेवरेट मेरे पोएट में से मतलब, और मुझे थोड़ा-सा ये जो पाकिस्तानी जो उर्दू शायर हैं, उनका मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। वो मैं चीज़ें मतलब ट्राई करता हूँ ऑलवेज़ कि मैं जब मुझे टाइम मिले, मैं उनमें से, क्योंकि मेरा लिरिकली जो मेरा जेनर है, जो मेरी रूह की खुराक है, वो थोड़ा-सा उर्दू म्यूज़िक और उर्दू का शायरी है, उर्दू की शायरी है। और मैं वो ट्राई करता हूँ ऑलवेज़। और पाकिस्तान में भी आपके काफ़ी फैन्स हैं ना? मैंने देखा आपके सोशल मीडिया पोस्ट पे काफ़ी पाकिस्तानी दोस्तों के, फैन्स के कमेंट्स होते हैं आपके पोस्ट पे। बिल्कुल, हर एक पोस्ट पे 1 ना 2 या 3 कमेंट्स होते हैं, वी लव फ्रॉम पाकिस्तान। बिकॉज़ हमारे जो गाने ज़िंदगी तेरे नाल और ज़िंदगी हसीन, और जो कवर्स वगैरह डालते हैं भाई, प भाई, और वो पाकिस्तान की ऑडियंस बहुत प्यार से सुनते हैं वो गाने, और ज़िंदगी तेरे नाल पाकिस्तान में बहुत बड़ा हिट रहा है अभी तक पाकिस्तान की ऑडियंस। और क्योंकि अच्छा सुनने वाले पंजाब में तो हैं ही, यहाँ पर इंडिया में तो हैं ही, और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। और जो जो गाना अच्छा है, जो गाना
लिरिकली कंपोजिशन वाइज अच्छा है वो तो पाकिस्तान में सुनते ही हैं। और हम लोग भी ऐसे ही हैं, अगर कोई पाकिस्तान का अच्छा गाना होता है तो हम भी यहाँ पे सुनते हैं ना। जैसे अभी साजिद अली साहब के गाने आते हैं, वो सभी पंजाब की ऑडियंस सुनती है और हम भी सुनते हैं और वो लोग पसंद बहुत करते हैं हमारी जैसे अभी ज़िंदगी हसीन आया था, ज़िंदगी हसीन को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं लोग। और आगे जैसे जितने भी गाने आएँगे मुझे लगता है सभी गाने पसंद करेंगे सभी ऑडियंस, इंडिया और पाकिस्तान की और पूरे वर्ल्ड की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो विकी जी, एक ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन आ रहा है कि हुँ, हुँ। आपका जो नेहा कक्कर और टोनी कक्कर के साथ आपका गाने कब आ रहे हैं आपके? नेक्स्ट सॉन्ग कब है? नेहा कक्कड़ जी के साथ गाना बना हुआ है, वो एज़ सून एज़ पॉसिबल इन दिस ईयर आ जाएगा। टाइमिंग का मुझे नहीं पता क्योंकि वो अंशुल भाई को पता होता है देसी म्यूज़िक फैक्ट्री में। और बट टोनी भाई के साथ अभी गाना बनाया नहीं है और होपफुली जल्दी बनाएँगे। और जब भी बनेगा मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगा कि गाना बन गया है। और नेहा जी के साथ ऑलरेडी बना पड़ा है गाना और वो जल्दी आ जाएगा। और भी नए-नए बहुत बड़े-बड़े सरप्राइज़ेज़ देसी म्यूज़िक फैक्ट्री पे भी आ रहे हैं और लेबल से भी आ रहे हैं गाने बड़े। एक्चुअली मैं ट्राई करता हूँ कि आई ट्राई टू बी यूनिवर्सल, यू नो, मतलब थोड़ा-सा कोई मुझे ये ना कहे भी ये जेनर तुम्हारा है, क्योंकि पहले ज़िंदगी तेरे नाल बनाया था और उसके बाद मैंने कोशिश करी कि मतलब मैं रोमांटिक लिखूँ और रोमांटिक गाने अच्छे बने। और मैं अभी ट्राई करूँगा, हर तरह का जॉनर करेंगे, हर तरह का। अभी गाने आ रहे हैं 2-3 मैंने बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ जेनर के बनाए पड़े हुए हैं, वो बॉलीवुड में आएँगे और मुझे लगता है अभी जब ऑडियंस सुनेगी तो उन्हें लगेगा भी हाँ, दिस इज़ समथिंग वर्सेटाइलिटी जो मैं दिखाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच विक्की जी। मज़ा आ गया इस पूरी कन्वर्सेशन का एंड आई थिंक आई लर्न सो मच फ्रॉम यू अगेन एंड आई एम श्योर माय ऑडियंस एज वेल। तो जाने से पहले क्या कहते हैं कि कुछ लाइन सोचें आपके फेवरेट गाने की। जी, आप जी। इतना ज़्यादा प्यार करते हो क्योंकि मुझे भाई ने बताया था, वरिंदर भाई ने बताया था भी मतलब भाई को हर एक चीज़ का पता है जो हमने करी है अभी तक और वो भी चीज़ें आपने सर्च करी है उस चीज़ पे और ये भी बड़ी बात है आपने हमारे लिए भाई के साथ बात करी और आई एम वेरी हैप्पी टू डू दिस इंटरव्यू विद यू क्योंकि मुझे खुद अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। ਅੱਖਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਨੀ ਓਏ ਬੇਚੈਨ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖੜਦੀ ਤੇਰੀ ਕਿਊਟ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਦੀ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਵਲਾ ਹੀ ਰੰਗ ਵੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪਸੰਦ ਵੇ ਕਿਊਟ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਦੀ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਵਲਾ ਹੀ ਰੰਗ ਵੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਨਾ ਦੂਰ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪਸੰਦ ਵੇ ਅੱਖਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਨੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖਰਦੀ ਤੇਰੀ ਕਿਊਟ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਦੀ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਵਲਾ ਹੀ ਰੰਗ ਵੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਨਾ ਦੂਰ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪਸੰਦ ਵੇ ਕਿਊਟ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਦੀ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਵਲਾ ਹੀ ਰੰਗ ਵੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਨਾ ਦੂਰ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪਸੰਦ ਵੇ। Perfect. That was a perfect musical ending, isn't it? कैसा लगा आपको ये एपिसोड? अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे आपसे अगली बार एक नई शख्सियत के साथ। टिल देन आप भी कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जिससे आपकी जय जयकार हो। जय हो। Jai ho, Jai ho, Jai ho. This is Jay Kumar Show. ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦੀਆਂ ਝੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦੀਆਂ ਝੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੜਿਆ ਨਾ ਕਰ
कर